Okay, hello class 12th. Now we have finished that chapter, the numericals we have done. I think you have tried some numericals from there. Today we are starting with a new chapter. The name of the chapter is Torque on a Current Carrying Loop and a Moving Coil Galvanometer. It is chapter number 8 in your textbook of Unit 3. So we have studied about the Oersted experiment. Okay, Oersted experiment के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि what does the experiment says you कि when we put a charge inside the magnetic field then it's experienced a force. क्या होता है उसके ऊपर वो एक force को experience करता है. Okay, so ये वाला जो टॉपिक है, the topic which we are going to discuss today, it is torque on the current carrying loop. Now torque means torque is force into perpendicular distance. It is a kind of a force which act perpendicular to the motion. ठीक है, जो क्या करती है, perpendicular direction में act करती है. It is a kind of a force. So today we are talking about the torque which acts on the current carrying loop when it is kept in the uniform magnetic field. For that, suppose we have taken uniform magnetic field. मैंने क्या किया, एक uniform magnetic field को ले लिया. Say the direction is in this way. Okay, this is the uniform magnetic field. और इस magnetic field में what we are doing, we have put a current carrying loop. इसके अंदर मैंने एक current carrying loop को place कर दिया. Okay, current carrying loop means it is a type of armature coil. Rectangular shape में है ये. Okay, it is in the shape of a rectangle. And say it is P, this end is Q, and this end is R, and this end is S. The direction of the field is in this way. Okay, direction of the field is in this way. So this is the armature coil we can say, or we can say it is a current carrying loop. Current carrying loop को हमने क्या किया, we have placed in a uniform magnetic field. If you are looking this figure, अगर ये figure आप अच्छे से देख रहे हैं तो what does we notice कि जो field की direction है it is in this way. Field कैसे move कर रही है, the magnetic field is moving in this way. ऐसे करके magnetic field move कर रही है and we have placed this current carrying loop. Current carrying loop जो है मैंने उसके लिए field की direction है and say we have placed this current carrying loop in this way. मैंने current carrying loop को placed कर दिया. कैसे करके प्लेस किया है कि इसकी जो आर्म PQ और RS है, ओके, जो PQ और RS जो आर्म्स हैं दे आर जस्ट परपेंडिकुलर टू द फील्ड. फील्ड के क्या है, वो परपेंडिकुलर हैं. एंड दीज आर्म्स, दैट मींस दैट दिस आर्म QR एंड PS दे आर पैरेलल टू द फील्ड. दोनों आर्म्स क्या हैं, दे आर पैरेलल टू द फील्ड एंड दीज टू आर्म्स दैट इज PQ एंड RS दे आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड. दोनों के दोनों आर्म्स क्या हैं, दे आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड. अब क्या होगा कि सपोज द करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे. करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है. इन दिस वे द करंट इज फ्लोइंग. इफ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स which is acting on these two arms, that is the arm PQ और RS पे जो force act कर रही है उसकी अगर मैं डायरेक्शन निकालूं तो it should be perpendicular to the field and it is perpendicular to the direction of the motion of the current. ये हम लोगों ने पढ़ा है किसमें, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है. ओके, लेफ्ट हैंड थंब रूल है. सो लेफ्ट हैंड थंब रूल मीन्स कि ऐसे करके मैंने प्लेस किया. Okay, my hand is placed in this way. Okay, right hand से मैं शो कर रहा हूँ, left hand because it is not visible. ऐसे करके placed है. So होगा क्या कि ये suppose this is the current and this is what, this is the magnetic field. So this is what, this is your direction of the force. ये force क्या है, it is perpendicular to the motion of the current. current के भी perpendicular है और field के भी perpendicular है. So we can say कि यहाँ पे arm PQ है, जो arm PQ है, PQ की जो लेंथ है, सपोज लेट अस टेक इट एज L. PQ इक्वल्स टू किसके है, RS के है. सो इनकी लेंथ में L ले लेता हूं. वी हैव टेकन द लेंथ L और सपोज जो QR है और PS है इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं, सपोज इट इज B और QR इक्वल है किसके, PS के, इक्वल्स टू B बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. अपोजिट साइड्स क्या होती है, दे आर इक्वल इन पैरेलल. सो
PQ इक्वल टू RS पैरेलल भी है एंड द लेंथ इज L, QR इक्वल टू PC। मैंने उसको कितना ले लिया, वी हैव टेकन इट एज B। अब क्या होगा बच्चे, इस पे फोर्स लगेगी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। कैसे लगेगी, ऐसे करके डायरेक्शन, ऐसे करके फोर्स एक्ट करेगी विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। फील्ड के भी परपेंडिकुलर है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के भी परपेंडिकुलर है, फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ऑन बोथ द आर्म, दोनों आर्म्स के ऊपर लगेगी, दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। ओके, दोनों की लेंथ बराबर है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इट इज इक्वल। जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का इक्वल होगा, बट जो उसकी डायरेक्शन होगी इट इज अपवर्ड, इट इज अपोजिट, वी कैन से अपोजिट होगी। एक का क्या होगा, एक का अपवर्ड होगा और एक का डाउनवर्ड होगा। सो वी कैन से, इफ आई से यहां पे जो फोर्स लगी है, से द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन दिस वे, अपवर्ड है, और यहां पे डायरेक्शन क्या है, दिस इज अपवर्ड और दिस इज से डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड क्या है, ये फोर्स से सपोज इट इज F1 एंड से सपोज दिस फोर्स इज F2। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। सो वी कैन से कि मैग्नीट्यूड of these two forces are equal, so we can say that these forces are equal, and we have studied that K force acting on a charge ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज इक्वल्स टू BIL बिल। सो ये भी क्या हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू बिल। सो वी कैन सिंपली से कि जो फोर्स है इट्स इक्वल्स टू BIL बिल। इफ दिस लूप मेकिंग सम एंगल, कुछ एंगल बना रही है, तो एट दैट एंगल विल बी टेकन एज थीटा। उस एंगल को कितना ले लोगे आप, थीटा ले लोगे। बट इन दिस केस दिस द वैल्यू ऑफ दिस थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 है। सो वी सिंपली गेट F इक्वल्स टू BIL बिल। ओके, ये मिल गया हमें। तो फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड। टॉर्क निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों की, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी कैन से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी हाउ मच, इट इज B। सो वी कैन से के टॉर्क इक्वल्स टू BIL बिल साइन थीटा इंटू हाउ मच, इंटू B वी कैन से, एंड दिस विल इक्वल्स टू, अगर थीटा की वैल्यू को, थीटा को हम लोग कितना ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं, तो इट विल बी BIL बिल and small b. So this will become area, so this will equals to BI and A. Okay, that means torque equals to BIA if the number of turns in the coil is taken as n. Number of turns को अगर मैं n ले रहा हूं, तो I get this torque equals to n BIA. So ये क्या आ गया, this is the टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप। क्या निकल गया, ये टॉर्क निकल गया ऑन द करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप पे मैंने क्या निकाल दिया, टॉर्क निकाल दिया। बट वी नो दैट के दिस NIA जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है इक्वल्स टू है NIB। NIB मीन्स इसको हम लोग स्मॉल m ले लेते हैं। स्मॉल m इक्वल्स टू, वी कैन से स्मॉल m इक्वल्स टू NIB। सो दैट मीन्स जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है हमारा, इट विल रिड्यूस टू, इट्स बिकम हाउ मच, m स्मॉल m इंटू हाउ मच, इंटू A। ओके, इट्स बिकम स्मॉल m इंटू B। कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू B। सो ये क्या हो गया, BIA। ये बेटा B नहीं है, दिस इज A। मैग्नेटिक मूवमेंट वी आर फाइंडिंग ना, तो इट इज करंट इनटू एरिया। सो टॉर्क इक्वल्स टू M इंटू B, वेयर दिस इज द टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू है। ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, और ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगी, वेक्टर होगा, और ये भी क्या होगा आपका, वेक्टर होगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप। जो करंट कैरिंग लूप पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। सो इसका जो यूनिट होगा, इट विल बी एम्पेयर मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट हम लोग अगर निकालेंगे तो इसका यूनिट आ रहा है क्या, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। सो दिस इज द यूनिट फॉर द टॉर्क। और सिंपली वी कैन से, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो वी कैन से न्यूटन मीटर।
Okay, so this is the deflecting torque acting on the current carrying loop. अब आगे चल के यही आपका बेस बन गया किसका, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग की फॉर्मेशन हम लोग करने वाले हैं उसका ये बेसिक प्रिंसिपल बन जाएगा। और जो अभी आगे चल के हम लोग गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हम लोग बनाने वाले हैं, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट। सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, एक तो होता है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर और एक होता है पीवीटी टाइप। जो सेंसिटिव टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर है इसको हम लोग क्या करते हैं, जो सेंसिटिव नाम हमने इसका इसलिए रख दिया है क्योंकि ये क्या है आपका ज्यादा यूज में आ रहा है। इन दूसरा जो आपका पीवीटी टाइप है वो इट इज more sensitive than the sensitive galvanometer, but it is not in use because it is difficult for us to carry it from one place to another, इसलिए ज्यादा हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। सो गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे in the next video. So for today only this much. Thank you very much.